Dr. Sajjad. Ma'am, Yeah, it's over. ma'am, that option is not with me. So you need to record and take permission from Dhruv sir. Sir, ma'am, who can I make a co-host? But it become live, I think It's now. already Now I it have will done. work. It's already I have done. So just first I have to make as a host. Then only. Sajjad sir, Just Yes, a second, ma'am. ma'am. I will please make. check. Please check. Definitely you will have this option of recording. Okay, ma'am. Please check, Give me a sir. minute, ma'am. Ma'am, Yeah, give me a sure. minute. I'll check. Sure, sir, sure. Sir, it's next to this share screen option at the bottom. Sir, it's just next to the share screen option. Yeah, it started now. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Yeah, Dean sir. So on behalf of Galgotia University, Dr. Saurabh Sharma, I, Pramod Kumar Sharma, as Dean Medical Allied Sciences and Pro-Vice Chancellor of Galgotia University, welcomes you. Welcome you, sir. You have spared your valuable time for addressing our students' concern as well as guiding our faculty members also. So Department of Physiotherapy and Galgotia University welcomes you again, Dr. Saurabh. You may start, please. Thank you. Yes, sir. Sir, Thank you so much, sir. very good evening, one and all. It's my pleasure to welcome Dr. Saurabh Sharma, CEO, Art of Manipulation, as a speaker for today's webinar. I welcome Very good evening, all. I'll request all the participants to kindly mute themselves. Dr. Saurabh. Yes, ma'am. Sir, just a minute. Sure, ma'am. Yeah. A very good evening, one and all. It's my pleasure to welcome Dr. Saurabh Sharma, CEO, Art of Manipulation, as a speaker for today's webinar. I welcome our Dean Sir, who is the backbone of School of Medical and Allied Sciences and always encourage us and support us everything for our betterment. Dr. Saurabh, on behalf of entire physiotherapy department of Galgotia's University, I, Dr. Rituraj Verma, Program Chair of Physiotherapy Department, welcome you in the event on Zoom platform. I would like to welcome all the participants also, as with their strong support and active participation every time they are making our event successful. Manual therapy has a long history within the profession of physiotherapy, and physiotherapists have greatly contributed to the current diversity in manual therapy approaches and techniques. Today, Dr. Saurabh will simplify the manual therapy approach for all of us. He will create a better understanding to the basic concepts of manual therapy. So, without taking much of your time, I would like to hand over the session to my colleague, Dr. Taruna, to introduce Dr. Saurabh. Dr. Taruna, over to you. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. I, Dr. Taruna Verma, Assistant Professor of Galgotia University, would like to welcome Dr. Saurabh Sharma. He is very renowned Chief Instructor of Art of Manipulation. He is a physio of BCCI Delhi team. Beside this, he is certified manual and manipulative therapist. He has been awarded the Emerging Physio of India Award by International Conference of Physical Therapy, AIMS New Delhi, in 2015. The Significant Contribution Award by GPA CON at Gurugram in 2017 and Jamia Millia in the 2018. He is also a TEDx speaker. He is even considered as a youth icon in the physio community. Instead of practicing abroad, he is serving the nation with the motto of empowering physiotherapists. He is dedicated to take the profession to greater height in the country by training physiotherapists with the latest advancement in the field and treating patients with wonderful technique for their betterment and more. Now, I put down my words and request Dr. Saurabh Sharma to deliver the session.
Over to you, sir. Please start the session. Thank you so much. Thank you so much, Pramod sir. Thank you so much, Rituraj ma'am. Thank you so much, ma'am, for such kind words. It's an honor to be invited here and be with amazing physios, amazing budding physios who will represent our profession in the coming years and who will be great doctors in the years to come. So I'll also thank Dr. Sajjad Alam for inviting me, for calling me and requesting me to conduct this session. And it is an honor to be with you all. And let me tell you, I'll start this session by thanking all the faculties of Galgotias University, because they are producing some wonderful physiotherapists. I have been associated with doing physio seva camps, and many students from Galgotia University join that camp. We promote camps, and it is one of the largest camp in the world that was done in Golden Temple. And there were plenty of physios from the Galgotias University who joined that camp. And I heartily thank all the teachers, all the faculty members who supported that event. So for today, my topic is manual therapy simplified. So being a manual therapist, I have been lucky enough to travel around 17 different countries in this world and get education from some of the most renowned physiotherapists across the globe. And what I actually observed is your hands-on treatment along with your hands-off treatment can actually change the life of patients. So for students, I know that there are students from first year, second year, third year, and fourth year, and I'll be taking lecture in both Hindi and English, because what I have observed as a clinician is most of our syllabus is in English, and most of our patient population that comes to us is in Hindi. So we have to minimize the gap of academic learning along with the clinical experience, what we see in clinics. So जो इन दोनों जो डिफरेंसेस हैं एकेडमिक लर्निंग के, जो बुक्स में हम सीखते हैं और जो क्लिनिक्स में जैसे आगे पेशेंट हमें एक्सप्लेन करता है अपने सिम्टम्स, उसमें डिफरेंस है. So we need to understand how we can apply these techniques. So let me share this screen. Is it visible? Can anyone type in the comment box? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Right. So I'll also request all the participants to kindly switch off their this voice, kindly mute themselves. That will be good, so that everyone can listen. I'll request again, सारे participants please अपने voice को mute कर लीजिए please. Sir, I have muted all. Right, sir. I'll request the participants to not unmute themselves. Thank you so much. जो हमारा अभी स्टार्टिंग स्लाइड है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लो बैक पेन. ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लो बैक पेन एंड व्हाट इज मैनुअल थेरेपी. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट लो बैक पेन. मैं लो बैक पेन की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, according to that 90% of the population will suffer from low back pain at some point in their life. 90% लोगों को कभी ना कभी लो बैक पेन होगा. तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है. इट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ द वर्ल्ड. ये सबसे कॉमन बीमारी है जो कि पूरे वर्ल्ड में होती है. और जो क्रॉनिक लो बैक पेन है, क्रॉनिक लो बैक पेन मतलब जिसमें द पेन दैट इज सस्टेनिंग मोर देन 1 year. तो जो क्रॉनिक पेन्स हैं सारे वर्ल्ड में, उसमें जो क्रॉनिक लो बैक पेन है, इट्स द मोस्ट कॉमन. So as a disease, it is all over the world present. चाहे वो इंडिया है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं,
सारी जगह ये प्रॉब्लम जो है रेम्पेंट है, और लो बैक पेन जो है बहुत कॉमनली जो है फिजियोथेरेपिस्ट इस डिजीज से जो है वो डील करते हैं हम। तो लो बैक पेन और मैनुअल थेरेपी, बहुत सारी रिसर्चेज हैं, बहुत सारी एविडेंसेस हैं। उसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्लासिफिकेशन हम करें लो बैक पेन की। अगर हम बात करते हैं, जब हम अपने फिजियोथेरेपी सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स और टूल्स आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी के सारे इक्विपमेंट्स हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मीज, IFTs, टेंसेस। उसके बाद हमारे हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट है, MET, MFR, PRT, मोबिलाइजेशन क्या है, मैनिपुलेशन क्या होती है, उसके बाद टेपिंग है, ड्राई नीडलिंग है, कपिंग है, बहुत सारी टेक्निक्स आप सुनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, दे आल्सो डील विद दिस। उसमें कुछ डॉक्टर्स जो हैं उसके लिए सर्जरीज रिकमेंड करते हैं, कुछ जो है होम्योपैथिक मेडिकेशन भी है लो बैक पेन के लिए अवेलेबल। फिर और आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं, या क्वेकरी भी है। कुछ लोग जो हैं वो कुछ रिलीजन को मिसयूज करके क्वेकरी को भी प्रमोट करते हैं फॉर द लो बैक पेन ट्रीटमेंट। या फिर आपने कई बार सुना होगा कि किसी गांव में या किसी विलेज में कोई इंसान है, वो कोई एक पर्टिकुलर तरह के टूल से ट्रीट कर रहा है किसी को, या फिर नॉर्मल वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग गड़वियां लगा रहे होते हैं, सम से इट्स द ग्लास, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह की जो ट्रीटमेंट हैं, जो कि जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है, वो भी हो रहे होते हैं। तो जो लो बैक पेन है, इट्स अ मेजर डिसऑर्डर इन दिस वर्ल्ड, एंड वी एज फिजियोज हैव अ मेजर रिस्पांसिबिलिटी इन डीलिंग विद लो बैक पेन। तो जब हमारे पास कोई भी लो बैक पेन पेशेंट आता है, उसको हमें क्लासिफाई करना, उसको हमने डिवाइड करना है डिफरेंट कैटेगरीज में। एंड व्हाई वी नीड टू डिवाइड, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज अगर हम उनको डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस पार्ट को, किस पार्ट के ऊपर हम जो टेक्निक कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग व्हाट। तो लो बैक पेन को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम रेड फ्लैग्स को, आप सबसे ऊपर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लो बैक के नीचे लिखा हुआ है लो बैक पेन। जो रेड फ्लैग्स हैं, ट्यूमर्स हैं या पॉट स्पाइन है, हम उसको अलग कर देते हैं। वी डोंट ट्रीट दीज कॉजेज विद फिजियोथेरेपी। उसके लिए हम मैनेजमेंट में बाद में काम करते हैं, लेकिन मैनुअल थेरेपी से हम रेड फ्लैग्स को ट्रीट नहीं करते हैं, उसको हम अलग रख देते हैं। और सेंट्रल मैकेनिज्म डोमिनेंट एक तरफ लिखा हुआ है येलो में, तो सेंट्रल मैकेनिज्म डोमिनेंट इज समथिंग रिलेटेड टू द ब्रेन, वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो मेजर जो क्लासिफिकेशन है लो बैक पेन की, वो दो तरह से होती है, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन एंड अनदर वन इज द स्पेसिफिक लो बैक पेन। नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में अपीयर नहीं होते। 90% ऑफ देम आर नॉन स्पेसिफिक। तो एक्सरेज MRIs में जो चीजें नजर नहीं आती हमें, दैट इज कैटेगराइज्ड एज नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन। और जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक्सरेज और MRIs में, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें पता चलता है। तो ये होते हैं सिर्फ 10%। तो नॉन स्पेसिफिक इज अ मेजर कैटेगरी। 90% लोगों को एक्सरेज और MRIs में प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी उनको बैक पेन होता है। When we further classify low back pain, ये दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज द मूवमेंट इम्पेयरमेंट, सेकंड वन इज द कंट्रोल इम्पेयरमेंट। तो जो मूवमेंट इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स होते हैं, when something is wrong with the joint, जब बोन्स के साथ कोई इशू होता है, सपोज दिस इज द स्पाइनल कॉलम, तो अगर यहाँ पे जो स्पाइनल सेगमेंट है के ऊपर एक वर्टिब्रा अरेंज है, तो ये 33 इन नंबर होती हैं, आप सब जानते हैं। सर्वाइकल में 7, फिर थोरैसिक्स, फिर लंबर, फिर सेक्रम और कॉक्सिक्स। तो जब जैसे ये ब्लॉक्स एक के ऊपर अरेंज हैं, तो देयर कैन बी फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी। ये फेसियल जॉइंट ये स्टक हो सकता है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द जॉइंट। तो अगर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द जॉइंट, तो हम उसको बोलते हैं मूवमेंट इम्पेयरमेंट है इसे। और ये डायरेक्शन और स्पेसिफिक होता है, डायरेक्शन और लेवल स्पेसिफिक होता है। मूवमेंट इम्पेयरमेंट वो होते हैं जिसमें बोन्स जो है प्राइमरी कॉज ऑफ मिसअलाइनमेंट है, बोन्स से रिलेटेड कोई इशू है। सेकंड इज द कंट्रोल इम्पेयरमेंट। कंट्रोल इम्पेयरमेंट के अंदर मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज की अगर कोई इम्पेयरमेंट है, देयर इज इम्बैलेंस ऑफ द मसल, जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर उनका मसल्स के अंदर कोई इशू है, सपोज देयर इज फेशियल टाइटनेस, सॉफ्ट टिश्यू है फेशिया, उसमें फेशिया की टाइटनेस है, या फिर मसल के अंदर ट्रिगर पॉइंट है, या फिर एंटागनिस्ट एगोनिस्ट मसल्स के अंदर इम्बैलेंस है, तो ये कंट्रोल इम्पेयरमेंट्स के अंदर आते हैं। जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज के इम्पेयरमेंट्स हैं,
वो आपको कंट्रोल इम्पेयरमेंट्स के अंदर आपके फॉल करते हैं। तो आप जैसे आप ट्रिगर पॉइंट को आप एक्सरेज में नहीं देख सकते, या एमआरआईज में आपको ट्रिगर पॉइंट्स नजर नहीं आएंगे, या फेशियल टाइटनेस नजर नहीं आएगी। तो दीज टू कैटेगरीज फॉल अंडर द नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, और ये होते हैं 90%। कमिंग ऑन टू द अदर साइड, जो कि स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं, अगर 100 हमारे पास टोटल पेशेंट थे तो उसमें से सिर्फ 10 पेशेंट ऐसे होंगे जिनके एक्सरेज और एमआरआईज में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये दो तरह के क्लासिफाई होती है स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स को। आगे हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज द न्यूरल डिसऑर्डर एंड सेकंड आर द स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। तो न्यूरल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जब भी आपने कभी किसी पेशेंट को देखा हो, मोस्ट ऑफ यू आपकी जब क्लिनिकल ड्यूटीज लगती हैं या आगे कभी लगेंगी, तो आप देखेंगे पेशेंट्स को बोलते हुए कि मेरी लेग में पेन रेडिएट कर रहा है। तो रेडिएशन ऑफ पेन जब आप सुनते हैं एज फिजियोज, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग आती है कि नर्व की इन्वॉल्वमेंट है। व्हेन द पेन रेडिएट्स डाउन द लेग, डेफिनेटली देयर इज द न्यूरल इन्वॉल्वमेंट। और अगर पैर में दर्द आ रहा है बैक से लेके, तो हम कॉमनली उसको लोग जो है आपको आके बताएंगे कि मेरी डिस्क स्लिप हो गई है, L4 L5 लेवल पे मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम होती है, और मेरे को शियाटिका है। ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, स्टूडेंट्स भी बहुत कॉमनली आपके हॉस्पिटल्स में जब भी ड्यूटीज लगती होंगी तो शियाटिका के केसेस आपको बहुत कॉमनली नजर आ जाएंगे। तो ये न्यूरल डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे रेडिएशन ऑफ पेन इज द फर्स्ट सिम्टम, जिससे हमें पता चलता है कि डेफिनेटली देयर इज सम न्यूरल इन्वॉल्वमेंट। जो न्यूरल पेन है वो फर्दर क्लासिफाई होता है NPSH, NPCN और PNS में। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट इट डाउन। First one is the neuropathic pain sensory hypersensitivity. NPSH is neuropathic pain sensory hypersensitivity is the NPSH. Second category is NPCN, neuropathic pain compressive neuropathy. Neuropathic pain compressive neuropathy. And the third one is PNS. PNS means peripheral nerve sensitization. The third category is, I repeat, peripheral nerve sensitization. तो ये जो तीन disorders हैं, ये जो तीन classification है, why are they different? Because जो भी हमारे पास न्यूरल पेन के पेशेंट्स हैं या शियाटिका के पेशेंट्स, जिनको हम नॉर्मली बोल देते हैं कि इनको रेडिएटिंग पेन है, वो डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? आपने अक्सर पेशेंट से जब भी आप बात करोगे तो कुछ पेशेंट्स आपको ना अपने सिम्टम्स जब बताएंगे, they will tell you that I have radiating pain, और साथ में मुझे burning sensation होती है पैर में, ऐसा लगता है कि मेरे पैर में कुछ जलन सी हो रही है। तो this is the most common vernacular term जो patient use करता है आपको जब वो बता रहा होता है। He will never say कि I'm suffering from NPSH. Very rarely someone will know about this. तो जब आपको पेशेंट आके बताए कि बेटा मेरे पैर में ये जलन रहती है, तो this sensation of burning is not the normal human sensation. वहां पे एक्चुअल में कोई फायर नहीं है, but the patient is feeling so it means he is suffering from sensory hypersensitivity. तो ये जो पेशेंट है उस पेशेंट से डिफरेंट है जो कि आपको बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द है। आपको कुछ पेशेंट्स ऐसे भी मिलेंगे कि आप जब उनसे पूछोगे कि सर आपके पैर में कोई जलन तो नहीं है, दे विल से नो, मेरे को जलन नहीं होती है, सिर्फ दर्द होता है, वेट डाल के जब चलता हूं तब दर्द होता है। तो आर दे डिफरेंट और सिमिलर? डेफिनेटली दे आर डिफरेंट। जिनके भी एबनॉर्मल सेंसेशंस हैं, एबनॉर्मल पेन लैंग्वेज होती है जिन पेशेंट्स की, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर NPSH, सेंसरी हाइपरसेंसिटिविटी। इट मींस नर्व से ज्यादा जो एबनॉर्मल पेन प्रोसेसिंग है, हमारा जितना भी प्रोसेसिंग होता है पेन का, दैट इज डन बाय आवर ब्रेन। तो जब भी हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है किसी पेन को, और उसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो वो उस पेन को बर्निंग सेंसेशन की तरह देखने लगता है। सो दिस इज NPSH। और दूसरी कैटेगरी है न्यूरोपैथिक पेन कंप्रेसिव न्यूरोपैथी की। कंप्रेसिव न्यूरोपैथी में एबनॉर्मल पेन सेंसेशन नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेन पेशेंट जो है वो मोस्टली कंप्लेन करता है। एंड द लास्ट वन इज पेरिफेरल नर्व सेंसिटाइजेशन। जो पेरिफेरल नर्व सेंसिटाइजेशन है, इट मींस दैट जो नर्व कंप्रेशन हुई है, दैट इज नॉट फ्रॉम द ओरिजिन एट द डिस्क लेवल। जहां पे डिस्क होती है वहां से ये आप येलो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, ये यहाँ पे डिस्क है, तो डिस्क के लेवल के ऊपर कंप्रेशन नहीं है। नाउ द
nerve is compressed in the periphery. Suppose जैसे nerve disc से बाहर निकली और hip region में वो pyriformis muscle के नीचे compression उसके ऊपर हो गया है pyriformis की tightness की वजह से. So something is wrong in the periphery. तो pyriformis muscle syndrome is the example of peripheral nerve sensitization. तो ये तीनों ही patients जो हैं different हैं और इन तीनों के लिए ही जो approaches हैं वो different हो जाती हैं. Coming on to the last part, that is specific disorders. इसमें spondylolisthesis है, discitis है, modic changes हैं. ये जितने भी आप MRI reports में age related changes देखते हैं, degenerative changes देखते हैं, तो ये आपको नजर आ जाएंगे. तो ये definitely they can be observed on an X-ray MRI. That is why they fall under the specific category. अब आप सारे ये सोच रहे होंगे कि हमने इन सबको डिवाइड क्यों किया है. तो आप देखिए, जब हम लो बैक पेन को डिवाइड करते हैं तो मेजर क्लासिफिकेशन हमने कर दी नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक में, और उसके बाद हमने 4 कैटेगरीज में मोस्टली इसको डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द मूवमेंट इम्पेयरमेंट. मूवमेंट इम्पेयरमेंट का मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बोन. कंट्रोल इम्पेयरमेंट मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सॉफ्ट टिश्यूज, मसल, फेशिया, लिगामेंट्स में अगर कोई खराबी है या सब कुछ कोई भी डिसफंक्शन है वहां पे, दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. तो बोन्स और मसल्स हो गए कवर. स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के अंदर न्यूरल डिसऑर्डर्स आ गए. तो पेन कैन बी बिकॉज ऑफ द नर्व्स, बोन्स, लिगामेंट्स, सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स, और देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक डिजीजेस लाइक स्पॉन्डाइलोलिसिस, फ्रैक्चर ऑफ द पार्स इंटरआर्टिकुलरिस. तो स्कॉटी डॉग अपीयरेंस आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, आपके सिलेबस में आता होगा. तो ये जो अलग अलग कैटेगरी है, इसमें हम अलग अलग तरह से टूल्स को, टेक्निक्स को यूज करते हैं, जो कि आप सारे अपने फिजियोथेरेपी स्कूल्स में, फिजियोथेरेपी कॉलेजेस में आप लर्न करते हैं. तो मूवमेंट इम्पेयरमेंट के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं, जब हम बोन्स को ट्रीट करने की बात करते हैं, तो वी हैव पर्टिकुलर टेक्निक्स लाइक मोबिलाइजेशन. जब हम मोबिलाइज कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग ऑन द बोन. जब हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग द बोन. और जब हम मलिगन बेल्ट ट्रीटमेंट, मलिगन टेक्निक्स होती हैं, मलिगन आप जब मास्टर्स करेंगे या आपके कुछ हो सकता है आपके सिलेबस में भी हो, या तो मलिगन टेक्निक्स जो होती हैं, दीज आर ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिकुलर मैनुअल टेक्निक्स. ये जो तीनों टेक्निक्स हैं, हम इसको मूवमेंट इम्पेयरमेंट के लिए यूज करते हैं. कमिंग ऑन टू द कंट्रोल इम्पेयरमेंट, जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स के ऊपर की जाने वाली टेक्निक्स हैं, लाइक ड्राई नीडलिंग, कपिंग, और MFR, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स, MET, मसल एनर्जी टेक्निक्स, PRT, पोजिशनल रिलीज टेक्निक्स. तो ये हम सारा जो भी है, या फिर टेलर्ड एक्सरसाइज रिहैब, हम कोई एक्सरसाइज रिजीम बना के दे रहे हैं, या मोटर कंट्रोल एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को, या कंट्रोल काइनेटिक कंट्रोल एक्सरसाइजेस करवाते हैं. These all are focused at treating the muscles और control impairments को, hence we treat control impairments using these techniques. Coming on to the specific disorders, neural techniques जो है, अब इसमें हमारे पास जो 3 कैटेगरीज हैं, वो तीनों अलग अलग तरह से हम डील करते हैं. न्यूरल टेक्निक्स, न्यूरल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए वी हैव मोबिलाइजेशन. डेफिनेटली हम मोबिलाइज करते हैं. व्हाई डू वी मोबिलाइज न्यूरल केसेस में? टू इंक्रीज द एग्जिटिंग नर्व रूट स्पेस. जो जहां से नर्व डिस्क के पास से बाहर निकल रही होती है, हम उसके स्पेस को इंक्रीज करने के लिए वहां पे मोबिलाइजेशन करते हैं. लाइक शियाटिका के लिए जो उसका नर्व रूट है शियाटिक नर्व की, दैट इज L4, L5 एंड S1. तो अगर हम L4, L5 में देखते हैं, MRI के अंदर प्रॉब्लम है, L4, L5 डिस्क प्रोलैप्स हो गया, तो आप कहां पे मोबिलाइज करोगे? You will mobilize, you will place your hand on the L4 segment. Always treat one level above. ये golden rule होता है मैनुअल थेरेपी का. जब भी आपके पास कोई L4, L5 डिस्क प्रोलैप्स का केस आए और उसकी रेडिएटिंग पेन हो, तो आप L5 के ऊपर मोबिलाइज नहीं करते. You always treat one level above. This is the rule in golden. This is the golden rule in manual therapy. कि आप हमेशा एक लेवल ऊपर L4 को ही आप पिसिफॉर्म अपना हैंड का, this is the pisiform bone, यहाँ पे आप उसको L4 के ऊपर स्पाइनस प्रोसेस को रखेंगे और 90 डिग्री डाउनवर्ड्स उसको मोबिलाइज करेंगे. तो इसमें न्यूरल स्पेसिफिक जो टेक्निक्स हैं वो है मोबिलाइजेशन है, बटलर न्यूरल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट करते हैं हम, या फिर स्लाइडर्स करते हैं, न्यूरल स्लाइडर्स, शियाटिक नर्व स्लाइडर है, फेमोरल नर्व स्लाइडर है. तो ये वाली टेक्निक्स जो है हम इसमें करते हैं. और NPSH जो NPCN है वो दोनों ही डिफरेंट है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चनएयर भी होता है. एक क्वेश्चनएयर मतलब हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर है.
आप उसका नाम नोट कर लीजिए सारे। उस क्वेश्चनेयर को बोलते हैं हम लैंस क्वेश्चनेयर, LANSS, लैंस, LANSS, that means leads assessment of neuropathic signs and symptoms. LEEDS, leads assessment of neuropathic signs and symptoms. तो leads assessment of neuropathic signs and symptoms क्वेश्चनेयर जब हम यूज करते हैं तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चनेयर होता है। तो अगर 20 में से +12 आपको किसी पेशेंट का स्कोर मिल जाता है, उसका मतलब दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम NPSH। और जो NPSH के पेशेंट्स हैं उनके अंदर अलोन फिजियोथेरेपी इज नॉट सफिशिएंट, उसके साथ साथ उनको पेशेंट को मेडिकेशन भी चाहिए। तो NPSH के जो पेशेंट्स हैं उसमें दोनों चीजें चाहिए, मेडिकेशन प्लस फिजियोथेरेपी, एंड ऑल्सो समटाइम साइकोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है जिनको फॉल्स सेंसेशंस होती हैं या एबनॉर्मल पेन सेंसेशंस होती हैं। तो NPSH इज द वर्स्ट काइंड ऑफ पेन अ पेशेंट कैन गो थ्रू। जब पेशेंट आपको आके बार बार बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे पैर में जलन है, मैं अपने थोड़ा सा दूर चलता हूँ तभी मेरे लेग्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत सारी नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको पेशेंट अक्सर अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है वो करता रहेगा। तो NPSH के पेशेंट्स के साथ आपको उसमें ध्यान रखना है कि फिजियोथेरेपी के साथ साथ आप एज फिजियोज उसके लैंस स्कोर को पता करिए और उसको रेफर आउट करिए किसी न्यूरो के पास एंड आस्क फॉर ओपिनियन। उसकी मेडिकेशन जो है एंटी न्यूरोपैथिक पेन मेडिकेशन बहुत कॉमनली प्रिगैबलिन्स होती हैं या ट्रिप्टोमर्स होती हैं जो कि डिसेंसिटाइज करती हैं ब्रेन स्टेम को। ये बहुत कॉमन मेडिकेशंस हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट या अदर फिजिशियंस या ऑर्थोपेडिशियंस जो हैं समटाइम्स दे प्रेस्क्राइब दीज मेडिसिन्स। तो एंटी न्यूरोपैथिक पेन मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इट्स बिकॉज जब आपके पास न्यूरोपैथिक पेन सेंसरी हाइपर सेंसिटिविटी का कोई पेशेंट आता है या जब भी कभी आएगा फ्यूचर में, तो आप उसको फिजियोथेरेपी की बेस्ट से बेस्ट मोडेलिटीज देंगे, बेस्ट से बेस्ट हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट देंगे, आप उसको मोबिलाइज भी करेंगे। सम ऑफ यू विल यूज द बटलर टेक्निक्स, बट द पेशेंट विल से कि सर आराम नहीं मिल रहा है, सर पेन मेरा उतना ही है, एंड दैट टाइम यू विल फील डिसहार्टेंड कि फिजियोथेरेपी जो है इफेक्टिव नहीं है। एक्चुअल में वो जो केस है वो इतना बढ़ गया है कि उसमें उसको मेडिकल हेल्प, मेडिकेशन की जरूरत भी पड़ती है। तो रादर देन ब्लेमिंग योरसेल्फ एंड फिजियोथेरेपी for the treatment that for the results that you expected are not coming, तो ये गलत है। आपको उसके पेशेंट की कैटेगरी समझनी है। if there is burning sensation, definitely उसको मेडिकल हेल्प की और साथ में साइकोथेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी। कमिंग ऑन टू द कंप्रेसिव न्यूरोपैथी, इसमें आप मोबिलाइजेशन करेंगे, बटलर टेक्निक्स लगाएंगे। पेशेंट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डे 1 पे पेशेंट से बात करके उसको समझाएंगे कि न्यूरल पेन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेने वाला जो है डिजीज है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, सो दैट नेक्स्ट डे पेशेंट आपके पास आता है तो ही विल नॉट जंप ऑन यू कि मैंने तो फिजियोथेरेपी ली है और ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जब किसी एक क्लिनिशियन के साथ होता है, जब आप अभी जो 4th ईयर में है या इंटर्न्स में है, दे विल वेरी सून रियलाइज दिस कि कुछ पेशेंट्स हैं जो आके आपको बोलेंगे कि सर वाओ अमेजिंग, फिजियोथेरेपी से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप उस दिन फेसबुक पोस्ट डालेंगे कि बहुत अच्छा हुआ and you will share the testimonials. But when someone will come and tell कि सर मुझे पेन में बिल्कुल आराम नहीं है, तब आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि क्या मैंने फिजियोथेरेपी करके कुछ गलत किया, या फिर you will feel bad about it कि मेरे से कुछ कमी हुई है। ऐसा नहीं है, because patient is suffering from last 2 years and he has come for just 2 or 3 sessions और फिर वो आपको ब्लेम कर रहा है कि फिजियोथेरेपी से मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो this is nothing wrong with the physiotherapy. And be kind to yourself. आप सारे स्टूडेंट्स हैं अभी के लिए, आप धीरे धीरे as you grow up you will learn many things in life. और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन है लो बैक पेन की, अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आपको सारे पेशेंट्स की माइंडसेट और कैसे अप्रोच करना है उस पेशेंट को वो समझ में आ जाएगा। तो न्यूरोपैथिक पेन, सेंसरी हाइपर सेंसिटिविटी और कंप्रेसिव न्यूरोपैथी दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास एक लैंस क्वेश्चनेयर होता है। अगर उसका स्कोर +12 है तो इसका मतलब वो सेंसरी हाइपर सेंसिटिविटी का पेशेंट है, अगर 12 से कम है तो वो न्यूरोपैथिक पेन, कंप्रेसिव न्यूरोपैथी का पेशेंट है। और कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, पेरिफेरल नर्व सेंसिटाइजेशन। पेरिफेरल नर्व सेंसिटाइजेशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था पायरिफॉर्मी सिंड्रोम। जो पेरिफेरल इशू है कोई,
तो आप उसमें नीडलिंग कर सकते हैं पायरिफॉर्मिस मसल की, या एल्बो नीडिंग कर सकते हैं, आप एल्बो से रिलीज कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को स्ट्रेचेस बता सकते हैं. देयर इज अ पोज नोन एज द पिजन पोज, आप पेशेंट को वो बता सकते हैं, उससे भी इंप्रूव होता है पायरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग करने से भी. तो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. कमिंग ऑन टू द लास्ट ग्रुप, जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, और मेन स्टे और मेन फोकस ऑफ आवर ट्रीटमेंट इज टू इम्प्रूव द ADLs, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ. पेशेंट की जो है वो इम्प्रूव करनी है हमें, पेशेंट को एक्सरसाइजेस पे लेके आना है. पेशेंट के पेन रिडक्शन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी भी अवेलेबल है, सो वी कैन यूज द इलेक्ट्रोथेरेपी इन दीज पेशेंट्स. तो जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं लो बैक पेन की, वी नो जो भी हम टेक्निक कर रहे हैं एज फिजियोज, हम उसमें किस चीज को डील कर रहे हैं, मूवमेंट इम्पेयरमेंट को डील कर रहे हैं, कंट्रोल इम्पेयरमेंट को, न्यूरल डिसऑर्डर्स को, या फिर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स को, और उसी तरह से हम अपनी स्पेसिफिक टेक्निक्स को चूज करते हैं. एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हम नॉन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं, जो कि 90% है, मूवमेंट और कंट्रोल इम्पेयरमेंट्स में. आप सारे बच्चों ने बहुत बार इस चीज का नाम सुना होगा, ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आर दे सिमिलर टू फिजियोथेरेपिस्ट, या वो बेटर हैं फिजियोथेरेपिस्ट से? लेट मी आंसर दिस, और मैं क्लियरली आंसर करना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. जो मूवमेंट इम्पेयरमेंट वाला जो सेक्शन है हमारा, उसमें जो प्राइमरी कॉज इज बोन, ये मानना है कायरोप्रैक्टर्स का, और प्राइमरी कॉज इज मसल, ये जो चीज है ये बोलते हैं ऑस्टियोपैथ्स. मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो कायरोप्रैक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि द प्राइमरी कॉज ऑफ अ मिसअलाइनमेंट इज द बोन. जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, अगर कोई मिसअलाइनमेंट बॉडी के अंदर है, तो उसका जो मेजर कारण है वो बोन है, ये कायरोप्रैक्टर्स बोलते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज कंट्रोल इम्पेयरमेंट, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं. और जो ऑस्टियोपैथ्स हैं वो बोलते हैं कि द प्राइमरी कॉज ऑफ अ मिसअलाइनमेंट इज मसल. तो यही लड़ाई है ऑस्टियोपैथ्स और कायरोप्रैक्टर्स की, कि मसल की वजह से मिसअलाइनमेंट होती है या बोन की वजह से मिसअलाइनमेंट होती है. तो इस लड़ाई की वजह से 200 साल से ये लड़ाई, 200 years से दिस फाइट हैज बीन गोइंग ऑन. इसकी वजह से हुआ क्या है कि दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए. जो कि एक स्कूल था वो सिर्फ बोन्स को ट्रीट करने के लिए टेक्निक्स के ऊपर काम करने लगा, वो कायरोप्रैक्टर्स बन गए. जितने भी आप मैनिपुलेशन टेक्निक्स, आप वीडियोस देखते होंगे कई बार बच्चे मैनिपुलेशन की, तो वो कायरोप्रैक्टर्स जो हैं वो कायरोप्रैक्टर्स का गिफ्ट है. और ऑस्टियोपैथ्स जितने भी सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस हैं, क्रेनियोसैक्रल बेस रिलीज, या फिर सॉफ्ट टिश्यूज के साथ बहुत सारा काम जो है MET के अंदर भी जो है वो ऑस्टियोपैथ्स ने किया है. तो ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन विच वन इज बेटर देन whom you can never judge that, because तीनों डिफरेंट प्रोफेशंस हैं और तीनों की अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं. और बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको बता दूं कि दिस इज द बिगर पिक्चर एज फिजियोथेरेपिस्ट सी इट, ये क्लासिफिकेशन. So we are not behind someone, we are not above someone, we respect their profession, and we should not be running after these titles, because as physios अगर हमारे को mobilization grade 3 अगर हम physios कर सकते हैं, तो grade 5 manipulation भी physiotherapist कर सकता है. So be confident of doing manipulations, और अगर आपने अच्छी तरह से सीख ली है मैनिपुलेशन तो आप यूज कर सकते हो. उसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. और ये जो सवाल है कि बोन पहले है या मसल पहले है, इट्स जस्ट लाइक आस्किंग कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था. आप सबसे अगर मैं ये सवाल पूछूं, इज इट द एग फर्स्ट और द हेन फर्स्ट, तो शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं दे पाएंगे इसका आंसर. और अगर आप पर्टिकुलर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप या तो कायरोप्रैक्टर की तरह सोचते हैं या ऑस्टियोपैथ की तरह. लेकिन बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट वी एक्चुअली नीड नॉट टू थिंक अबाउट these things, बिकॉज ये दोनों ही चीजें एक साथ हर पेशेंट में मिलती है हमें. जहाँ पे मूवमेंट इम्पेयरमेंट होती है, जहाँ पे बोन रिलेटेड मिसअलाइनमेंट है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मसल्स एज वेल. सो बोथ ऑफ दीज मूवमेंट इम्पेयरमेंट और कंट्रोल इम्पेयरमेंट दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं पेशेंट के अंदर. तो मसल्स अगर इम्बैलेंस में है, दिस विल लीड टू द बोनी मिसअलाइनमेंट, या इसको दूसरे तरीके से बोलें, अगर बोनी मिसअलाइनमेंट है तो मसल्स विल गो इनटू इम्बैलेंस. So we need not to think about these things. As a physiotherapist, you are well equipped. तो क्लासिफिकेशन आई होप समझ में आ गया. जितनी भी क्वेरीज हैं एट द एंड ऑफ सेशन में जरूर लूंगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मूवमेंट डायग्राम.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मैनुअल थेरेपी। ये नींव पत्थर है मैनुअल थेरेपी का। अगर आपको ये मूवमेंट डायग्राम समझ में आता है तो यू विल बी अ ग्रेट मैनुअल थेरेपिस्ट वन डे। तो ये मूवमेंट डायग्राम होता क्या है और हम कैसे बनाते हैं, क्या है ये चीज? मूवमेंट डायग्राम इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये आप देख रहे हैं 4 बॉक्सेस हैं इसमें। सामने की तरफ फ्लेक्शन लिखा हुआ है, पीछे की तरफ एक्सटेंशन। ऑन वन साइड देयर इज राइट एंड वन साइड देयर इज लेफ्ट। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, थेरेपिस्ट के पास आके वो प्रॉब्लम बताता है। सपोज एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आया एंड ही सेज कि सर मुझे जब मैं फॉरवर्ड बेंड करता हूं तो मुझे पेन होता है। तो व्हाट अ थेरेपिस्ट विल डू, वो कंबाइंड मूवमेंट करके देखेगा। ही विल टेक द पेशेंट इनटू फ्लेक्शन। फॉरवर्ड फ्लेक्शन में हम उसको लेके जाएंगे। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। जो मेरा कर्सर विजिबल है? कैन समवन से यस और नो? इज माय कर्सर विजिबल? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। ये जो रेड लाइन, जो ये रेड एरो मैंने ड्रॉ किया है, वो पेशेंट आगे की तरफ गया एंड मिड फ्लेक्शन में यहाँ पे वो पेशेंट खड़ा हुआ था। हमने उसको फॉरवर्ड बेंडिंग फ्लेक्शन की तरफ लेके गए। तो जब वो आगे की तरफ झुका तो मिड फ्लेक्शन रेंज में यहाँ पे आके उसको पेशेंट को पेन आ गया। तो दिस रेड लाइन इज नोन एज द प्राइमरी मूवमेंट ऑफ पेन। दिस रेड लाइन इज नोन एज द प्राइमरी मूवमेंट ऑफ पेन। और यहीं से हम उस पेशेंट को टुवर्ड्स द राइट और द लेफ्ट, सपोज हमने उसको राइट साइड बेंड किया, उसको पेन था, लेफ्ट साइड में उसको पेन नहीं था, तो हम उसको राइट साइड की तरफ जब हम लेके जाएंगे यहाँ से, तो विल ड्रॉ अनदर लाइन। और ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी मूवमेंट ऑफ पेन। तो उसको फ्लेक्शन में और राइट साइड बेंडिंग में पेन आ रहा था। दिस इज नोन एज द कंबाइंड मूवमेंट। ये हम ड्रॉ करते हैं पेशेंट के स्लिप के ऊपर। Snehal, please switch off your voice, and Aditi, please switch off your. Thank you. जब हम ये मूवमेंट डायग्राम बना रहे होते हैं, तो रेड वाली जो लाइन है, दिस इज नोन एज द प्राइमरी मूवमेंट ऑफ पेन, एंड दिस ब्लू लाइन इज नोन एज द सेकेंडरी मूवमेंट ऑफ पेन। तो ये जो मूवमेंट डायग्राम है, हम ये क्यों बनाते हैं? व्हाई डू वी मेक दिस? एक इसका बेनिफिट ये है कि जब भी पेशेंट आपके पास आएगा नेक्स्ट विजिट में, आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी इट ऑन द स्लिप। आप उसकी स्लिप के ऊपर देख सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक विद दिस पेशेंट, जो कि उसने आपको हिस्ट्री बताई थी कि मुझे फॉरवर्ड बेंडिंग में और राइट साइड बेंडिंग में पेन है। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा जब उसकी आप ये मूवमेंट डायग्राम देख लोगे। क्या सिर्फ इतना ही है इसका बेनिफिट? नहीं, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि सपोज आपके पास 3 पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट वो, आई होप सारे सुन रहे हैं मेरी बात। इज इट ऑडिबल? यस सर। यस सर। थैंक यू। Yes, sir. अगर आपके पास प्रणव प्लीज, थैंक यू। अगर आपके पास सिन कंसेप्ट की नॉलेज है, सिन होता है एक हमारे पास मैनुअल थेरेपी में, हम एक सिन कंसेप्ट की बात करते हैं। सिन की फुल फॉर्म आप सारे नोट कर लीजिए। S स्टैंड्स फॉर सिवियरिटी ऑफ पेन। S का मतलब होता है सिवियरिटी ऑफ पेन। I की फुल फॉर्म होती है इरिटेबिलिटी। I स्टैंड्स फॉर इरिटेबिलिटी और N स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ पेन। तो जो सिन कंसेप्ट है, उससे हमें कैसे पता चलता है कि क्या ट्रीटमेंट देना है हमें पेशेंट को? सिन इज ऑफ 3 टाइप्स। अगर बहुत ज्यादा सिवियर पेन है किसी पेशेंट को, एक पेशेंट को बहुत ही कम पेन है, वो आपके पास आया हंसता खेलता कि सर अभी तो मुझे पेन नहीं है, लेकिन मैं जब जिम में वेट लिफ्ट करता हूँ तो जो है वो मेरे को पेन होता है। और एक पेशेंट वो है जो आपके पास बहुत ज्यादा पेन में है, उसका कोई रिलेटिव उसके साथ आया और वो सपोर्ट लेके आपके क्लिनिक में आ रहा है या आपके हॉस्पिटल में आ रहा है। तो और एक पेशेंट वो है जो कि नॉर्मली आपके पास आता है कि सर मैं फिजियोथेरेपी करवा लेता हूँ और दवाइयां भी ले रहा हूँ, तो काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पेन बिल्कुल ही खत्म हो गया है, लेकिन पेन तो बना ही हुआ है, लगातार फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो काम चल जाता है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट जो कि नॉर्मली पेशेंट लैंग्वेज में अपनी बताता है आपको। एक पेशेंट आपको बोल रहा है कि सर मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है, रात को इतना ज्यादा दर्द है, जिसको आप एक्यूट पेन पेशेंट भी बोलते हो। ही इज स्क्रीमिंग इन पेन। और दूसरा पेशेंट वो जो कहता है कि सर मेरे को डेली एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन जिम में जब वेट लिफ्ट करता हूँ तब मुझे पेन होता है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो कहता है कि पेन इतना ज्यादा भी नहीं है कि मैं बेड पे ही बैठा रहूं, और पेन इतना कम भी नहीं है कि मुझे दवाइयां भी ना लेनी पड़े। तो दिस इज 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेन, जिसको हम बोलते हैं हाई सिन, जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन है। सेकंड इज द लो सिन, जिनको बहुत ही कम पेन है। एंड द थर्ड वन इज द मॉडरेट सिन मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो सिवियरिटी हमें कैसे पता चलेगी? वास से, विजुअल एनालॉग स्केल या NPRS, न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल से। अगर पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे 10 में से 10 दर्द है, 10 आउट ऑफ 10 मेरा पेन है, तो वो हाईली सिवियर होगा या लेस सिवियर होगा? आप सारे सोच लीजिए इसे। डेफिनेटली इट विल बी लेस सिवियर। अगर आपको इट विल बी वेरी सिवियर। अगर वो 10 में से 10 आपको बता रहा है तो वो बहुत ज्यादा पेन में है पेशेंट। अगर वो आपको बोलता है कि सर मेरे को 10 में से 1-2 नंबर ही पेन होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी वेट लिफ्ट करने के बाद या रनिंग करने के बाद या स्ट्रेनस एक्टिविटी के बाद पेन होता है, एंड ही विल रेट हिज पेन अराउंड 1 और 2, तो वो कहेगा कि पेन बहुत कम है। तो दिस इज अ पेशेंट ऑफ लो सिन। और जो मॉडरेट सिन की वास वैल्यू होती है वो अराउंड होती है 4-5। अगर आपको कोई पेशेंट बोलता है कि सर 4-5 के बराबर पेन है 10 में से, तो दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट सिन। तो आप सब सारे सोचिए कि अगर आपके पास 3 डिफरेंट तरह के लोग हैं, 3 डिफरेंट पेशेंट्स हैं, एक को बहुत ज्यादा पेन है, एक को बहुत ही कम पेन है, और एक को मॉडरेट पेन है, तो हमें क्या इनको डिफरेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए या सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए? Do we need to treat them differently, or we need to give the similar treatment to every patient? Differently. Definitely different approaches होंगी हमारी। सपोज आपके पास एक पेशेंट आया जो कि बहुत ही ज्यादा पेन में है, ही इज स्क्रीमिंग इन पेन, तो एज अ थेरेपिस्ट आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? So relaxation. उसको पेन रिलीफ देना। डेफिनेटली उसको रिलीफ देना है, पेन से पेशेंट को रिड्यूस करना उसके पेन को। तो फॉर अ हाई सिन पेशेंट द फर्स्ट एम ऑफ थेरेपिस्ट इज टू रिड्यूस द पेन। तो हम क्या करेंगे? सपोज पेशेंट ये है, ये जो पेशेंट है, मूवमेंट डायग्राम, पेशेंट इज हैविंग पेन इन फ्लेक्शन एंड राइट साइड बेंडिंग। उसको फ्लेक्शन में और राइट साइड बेंडिंग में पेशेंट को पेन है, और वो हाई सिन का पेशेंट है। हाई सिन का पेशेंट है मतलब बहुत ज्यादा सिवियर पेन है, उसे इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपने हल्का सा पेशेंट को हाथ लगाया, वो इरिटेटेड हो गया और उसका पेन सिम्टम आ गए, और नेचर ऑफ द पेन इज थ्रॉबिंग, वो चिल्ला रहा है पेन में। तो फर्स्ट एम ऑफ द थेरेपिस्ट इज टू रिड्यूस द पेन। तो हम कैसे रिड्यूस करेंगे इस पेशेंट के पेन को? अगर उसको इस एरिया में देखिए, इस बॉक्स की तरफ, फ्लेक्शन और राइट वाले बॉक्स में जहां पे ये ब्लू एरो खत्म हो रहा है, यहाँ पे उसको पेन है, तो what will be doing is take the patient exactly opposite, diagonal direction में। हम पेशेंट को बेड के अंदर, एक्सटेंशन के अंदर और लेफ्ट साइड बेंडिंग में उसको पेशेंट को हम लिटाएंगे, और उसके बाद जितनी भी आप ट्रीटमेंट्स हैं उसको इसी पोजीशन में देंगे। इफ द पेशेंट इज स्क्रीमिंग इन पेन, जो उसकी पेन प्रोवोकिंग मूवमेंट है उससे बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट, डायगोनल डायरेक्शन में उसको अपोजिट ले जाना है। फ्लेक्शन की जगह उसको एक्सटेंशन में डालना है बेड के अंदर, और लेफ्ट साइड बेंडिंग की जगह, राइट साइड बेंडिंग की जगह उसको लेफ्ट साइड बेंडिंग की तरफ। सो वेयर विल बी द पेशेंट पोजीशन राइट नाउ? अब यहाँ पे जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो पेशेंट पोजीशन होगी ये, एक्सटेंशन और लेफ्ट साइड बेंडिंग। कैसे हम लेके जाएंगे पेशेंट को एक्सटेंशन के अंदर? वी विल प्लेस द पिलोज अंडरनीथ द चेस्ट। हम जब पेशेंट उल्टा लेटेगा बेड के ऊपर, तो हम उसकी चेस्ट के नीचे 2 पिलोज रख देंगे। ही विल ऑटोमेटिकली गो इनटू एक्सटेंशन, और जो उसकी लेग्स हैं हम उसको लेफ्ट साइड की तरफ बेंड कर देंगे। एंड इन दिस पोजीशन यू विल मोबिलाइज दैट पेशेंट। आप उस पेशेंट को मोबिलाइजेशन दोगे इस पोजीशन के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। अगर हाई सिन का पेशेंट है तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन में आप उसको ले जाएंगे और फिर उसको ट्रीट करेंगे। So this way your patient is comfortable। आप उसको पेन प्रोवोकिंग जो मूवमेंट है उसकी फ्लेक्शन और राइट, उससे बिल्कुल अपोजिट ले गए, और आपने पेशेंट के पेन को बढ़ाया नहीं है, राइट? तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर लो सिन का पेशेंट है, सपोज आपके पास पेशेंट आ गया, हाई सिन का तो समझ में आ गया कि अगर पेन है तो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट ले जाना है। तो अगर वो पेशेंट
अब लो सिन का पेशेंट है, लो सिन का पेशेंट मतलब कभी कभी दर्द होता है, वो हंसता खेलता आपके पास आया है क्लिनिक में कि सर वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ ही इज इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है और वो आपको बोल रहा है कि सर मुझे ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे को कोई पेन नहीं है चलने फिरने में, लेकिन जब मैं जिम करता हूँ या वेट लिफ्ट करता हूँ या रनिंग पे जाता हूँ सुबह, तब मेरे को बैक में हल्का सा पेन होता है, और तब मैं हल्का सा आगे झुकता हूँ और राइट साइड बेंड करता हूँ ना, तभी पेन होता है, वैसे कभी दिन में पेन नहीं होता है। अभी भी वो जब आपके सामने क्लिनिक पे बैठा हुआ है तो उसको पेन नहीं है, तो हाउ विल यू, व्हाट इज योर अप्रोच, आप क्या करोगे उस पेशेंट को, व्हाट इज योर एम एज अ थेरेपिस्ट? अभी उसको दर्द नहीं है, योर एम हियर चेंजेस, आप यहाँ पे उसके पेशेंट को उस पेशेंट के पेन को फाइंड करने की कोशिश करोगे, यू विल ट्राई टू फाइंड फ्रॉम वेयर द पेन इज अराइजिंग। तो आप उस पेशेंट को सेम पेन प्रोवोकिंग मूवमेंट में ही प्लेस करोगे बेड के अंदर, आप उसको ढूंढोगे तो सही, आपने जिस चीज को ट्रीट करना है यू हैव टू फाइंड फ्रॉम वेयर द पेन इज कमिंग फ्रॉम। तो आप अगर लो सिन का पेशेंट है, यू विल प्लेस द पेशेंट, अगर वो बोलता है कि मुझे आगे झुकने से और राइट साइड बेंडिंग से तब पेन आता है, यू विल प्लेस द पेशेंट इन द बेड इन द फ्लेक्शन एंड राइट साइड बेंडिंग। तो अगर ये वाला बॉक्स है, अगर ये वाली उसकी पेन प्रोवोकिंग मूवमेंट है और वो लो सिन का पेशेंट है और उसको अभी पेन नहीं है, यू विल प्लेस द पेशेंट इन फ्लेक्शन एंड राइट साइड बेंडिंग। तो ये लो सिन के लिए एग्जैक्टली सेम रहेगा, हाई सिन के लिए ऑपोजिट हो जाएगा। तो फ्लेक्शन में हम उसको कैसे लेके जाएंगे पेशेंट को, नाउ यू विल चेंज योर पिल्लोज, आप एक या दो पिल्लोज जो आप चेस्ट के नीचे प्लेस कर रहे थे तो वो एक्सटेंशन में जा रहा था उल्टा लेटने पे, अगर आप ऐसे उल्टा लेटे हैं और चेस्ट के नीचे आपके कोई पिल्लोज रख देगा तो आप एक्सटेंशन में जाओगे। अब आप ये पिल्लोज की पोजीशन चेंज कर दोगे उसके स्टमक के नीचे, नाउ द पेशेंट विल गो अंडर फ्लेक्शन, आप उसके टम्मी के नीचे एब्डोमिनल रीजन में जो है वो पिल्लोज को रख देंगे सो दैट द पेशेंट गोज इनटू फ्लेक्शन, और आप उसकी लेग्स को राइट साइड बेंड कर देंगे एंड नाउ यू विल मोबिलाइज इन फ्लेक्शन एंड राइट साइड बेंडिंग। तो दोनों जो अलग अलग पेशेंट्स हैं उनके हमारी जो पोजीशनिंग है वो बेड में डिफरेंट कर दी हमने, हाई सिन के लिए अपोजिट, लो सिन के लिए सिमिलर पेन प्रोवोकिंग मूवमेंट जहां से हो रहा है उसको पेन वहीं पे प्लेस करना है। कमिंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी वो जो कि अक्सर आप क्लिनिक्स में देखोगे, अक्सर हमारे क्लिनिक्स में भी आते हैं वो लोग जिनको मॉडरेट पेन होता है, बहुत कम भी पेन नहीं होता है और एक्सट्रीमली सीवियर पेन भी नहीं होता है। दे विल से कि दवाई भी खा रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं और कभी कभी जब पेन होता है तो एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। ये बड़ी कॉमन सी टर्म्स हैं एज क्लिनिशियंस आपके घर में, एज आप ऑब्जर्व करेंगे अपने वर्ल्ड में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने नेबर्स के अंदर, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे ऐसी बातें बोलते हुए कि मैं आप सारे बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ एज ए क्लिनिशियन, यू विल लिसन टू दिस टर्म वेरी कॉमनली कि बेटा अब तो ये दर्द लगता है मेरे साथ ही जाएगा। बहुत ही कॉमन टर्म है, ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज है जो पेशेंट्स यूज करते हैं इंडिया में कि तो ये दर्द मेरे साथ ही जाएगा। तो ये जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं ये आपको समझना है कि व्हाट मैसेजेस द पेशेंट इज ट्राइंग टू गिव टू यू। तो ये जो मॉडरेट सिन के पेशेंट्स हैं उसमें क्या करना है हमने, उसमें आपने एक जो है कैटेगरी, एक जो पेन प्रोवोकिंग मूवमेंट है उसको शिफ्ट कर देना है। आइदर यू विल शिफ्ट फ्रॉम दिस एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन और राइट को आप सिमिलर रखेंगे। फ्लेक्शन और राइट साइड बेंडिंग में उसको पेन था, आपने एक्सटेंशन को चेंज कर दिया फ्लेक्शन में और राइट को सिमिलर रखा। तो आपने एक मॉड्यूल कुछ, एक जो पेन प्रोवोकिंग कैटेगरी थी, एक जो पेन प्रोवोकिंग मूवमेंट थी उसको आपने चेंज किया, दूसरे को सिमिलर रखा। और अदरवाइज सिमिलर रख सकते हैं हम फ्लेक्शन को आपने सेम रखा और इसको राइट की जगह लेफ्ट कर दिया। तो आपकी इनिशियल जो पेन प्रोवोकिंग मूवमेंट थी वो फ्लेक्शन और राइट साइड बेंडिंग थी, और मॉडरेट सिन का पेशेंट है तो आपने राइट की जगह उसको फ्लेक्शन में ही रखा, पिलोज जो है टमी के नीचे ही रखे
और राइट से चेंज करके उसकी लेग्स को लेफ्ट साइड में बेंड कर दिया। तो मॉडरेट सिन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। फॉर द लो सिन, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर ये फ्लेक्शन और राइट साइड बेंडिंग में किसी पेशेंट को पेन है, पेशेंट कहता है मुझे आगे झुकने में और राइट साइड बेंड करने में पेन है, तो अगर पेन है तो कितना पेन है, उससे आपको पता चलेगा वो पेशेंट का सिन क्या है, हाईली सीवियर है, मॉडरेट है या लो सिन पेशेंट है। हाईली सीवियर पेन है तो आप क्या करोगे, इस पेशेंट पोजीशन को एग्जैक्टली अपोजिट, आप उस पेशेंट को दर्द वाली पोजीशन से बिल्कुल दूर ले जाओगे। डायरेक्शन को चेंज कर दोगे एक्सटेंशन में, राइट को चेंज कर दोगे लेफ्ट में। तो प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्लेक्शन को आप चेंज करोगे एक्सटेंशन में और राइट को लेफ्ट में फॉर हाई सिन। फॉर लो सिन आप सिमिलर एरिया में फ्लेक्शन और राइट साइड में ही उसको ट्रीट करोगे। और मॉडरेट सिन के लिए आपके पास दो बॉक्सेस बच जाएंगे, जिसमें कि यू कैन ट्रीट दिस one pain provoking movement can be changed. तो फ्लेक्शन को एक्सटेंशन में रख के चेंज करके राइट को सिमिलर रखिए, या फिर फ्लेक्शन में ही रखिए, राइट की जगह लेफ्ट कर दीजिए। तो आप तीनों डिफरेंट केसेस को तीनों अलग अलग तरीके से मोबिलाइजेशन दे सकते हो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिन। ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज होता क्या है कि अगर आप सिन कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन नहीं करते हो तो हाई सिन के पेशेंट जो होते हैं, जिनको पेन रिलीफ जिस भी पोजीशन में हो रहा होता है, अगर आप उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम पेशेंट की बढ़ जाती है। और समटाइम्स आपने भी सुना होगा कि फिजियोथेरेपी ली थी और पेन बढ़ गया, और वो इसी वजह से यही कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का जो पेन है वो बढ़ जाता है एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग फिजियोथेरेपी फॉर दैट। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि यूटिलाइजेशन ऑफ द सिन कंसेप्ट बिफोर द मोबिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप सिन कंसेप्ट यूज करते हो तो योर मोबिलाइजेशन बिकम्स वेरी स्पेसिफिक। आई होप ये क्लियर है। क्लासिफिकेशन हमने अंडरस्टैंड कर ली है और हमने सिन कंसेप्ट के बारे में सुन लिया है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ, ड्रॉ द मूवमेंट डायग्राम। आप सबको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप अपनी बुक्स पे, कॉपीज पे या पेपर्स पे कहीं पे भी नोट कर रहे हैं अगर, तो आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी बना सकते हैं कि ड्रॉ द मूवमेंट डायग्राम फॉर पेशेंट हैविंग पेन इन एक्सटेंशन एंड लेफ्ट साइड बेंडिंग। ड्रॉ द मूवमेंट डायग्राम फॉर पेशेंट हैविंग पेन इन एक्सटेंशन एंड लेफ्ट साइड बेंडिंग। आपने सारों ने सुन लिया है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो दिस इज द सेंटर पॉइंट, यहाँ से पेशेंट जो है वो शुरू करता है अपनी मूवमेंट, और आप फर्स्ट लाइन जो बनाएंगे, प्राइमरी मूवमेंट ऑफ पेन वाज एक्सटेंशन, और यहीं से इस पॉइंट पे जब वो पेशेंट पहुंच गया, यहीं से आपने उसको लेफ्ट साइड बेंडिंग की तरफ मूव किया। तो दिस इज द मूवमेंट डायग्राम। तो प्राइमरी मूवमेंट ऑफ पेन इज द रेड वन एंड द सेकेंडरी मूवमेंट ऑफ पेन इज द ब्लू वन। तो जितने भी बच्चों ने इस मूवमेंट डायग्राम को ठीक बनाया है, तो आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मैनुअल थेरेपी बिकॉज दिस सेट्स द नॉर्म कि आपके जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट स्पेसिफिक हो जाए। पेशेंट स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा? सपोज आपके पास शियाटिका का पेशेंट आया, और जितने भी शियाटिका के पेशेंट्स हैं या रेडिएटिंग पेन के पेशेंट्स हैं, वो आपके पास अक्सर फ्लेक्शन में आते हैं बिकॉज उनको एक्सटेंड करने पे पेन होता है। वो आपके पास आगे झुक के आता है और जिस लेग में पेन हो रहा होता है उसके ऊपर वेट नहीं डालते हैं वो। तो एक्सटेंशन और वन साइड, सपोज दिस लेफ्ट साइड में उसको पेन आ रहा है, तो वो आपके पास फ्लेक्शन और राइट साइड बेंडिंग पोजीशन में ही आपके क्लिनिक में आता है बिकॉज हल्का सा भी वो एक्सटेंशन में जाता है तो उसको पेन निकलता है लेग में। मोस्टली दिस हैपेंस, आपके एमआरआई रिपोर्ट्स में भी आप देखते होंगे पोस्टीरियर लेटरल डिस्क बल्ज। सो ये क्या है? फ्रॉम हियर इफ यू गो बैक, दिस इज पोस्टीरियर। आप खुद एक्सटेंड होके देखिए, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज लेटरल। एक साइड में अगर वो जाता है, उससे बचने के लिए वो क्या करता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है पेशेंट की? वो फ्लेक्शन में आता है, अपोजिट साइड बेंड, वो आता है एंटीरियर एंड अपोजिट साइड लेटरल, कॉन्ट्रालेटरल साइड की तरफ बेंड होके आता है। तो जितने भी शियाटिका के पेशेंट्स हैं वो आपके पास फ्लेक्शन में और अपोजिट साइड, जिस लेग में पेन आ रहा होता है उससे अपोजिट साइड पेन में वो बेंड करके आते हैं।
तो अगर आपके पास ऐसा कोई sciatica का पेशेंट आया जिसको बहुत ज्यादा दर्द है, ही इज इन हाई सिन, बहुत पेनफुल है वो, और उससे बिल्कुल भी लेग के ऊपर वेट नहीं डाला जा रहा है, तो आपका एम क्या रहेगा? उसको ट्रीट कैसे करना है? आपने उसको पेन रिलीविंग पोजीशन में लेके जाना है, और मोबिलाइजेशन कहाँ पे करोगे? अगर L4, L5 और S1 नर्व रूट है तो, और L4, L5 सेगमेंट में उसको प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ पे रखोगे हाथ? कौन से सेगमेंट पे होगा अगर L4, L5 में प्रॉब्लम है? One level above. One level above is L4. L4, L5 अगर प्रॉब्लम है तो L4 सेगमेंट के ऊपर आप पिसिफॉर्म को रखेंगे अपने हाथ के, और 90 डिग्रीज डाउन रिदमिक ऑसिलेशंस देंगे उसको, तो मोबिलाइजेशन जो है वो स्पेसिफिक हो जाएगी। सपोज नाउ 10 दिन हो गए आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपने इलेक्ट्रोथेरेपी भी दी उसे, आपने मोबिलाइजेशन भी दी, आपने नर्व स्लाइडर्स भी बताए उसको, शियाटिक नर्व स्लाइडर एक्सप्लेन किया। अब उस पेशेंट, और वो किसी डॉक्टर से दवाई भी ले रहा था, सपोज एंटी न्यूरोपैथिक पेन मेडिकेशन भी उसकी चल रही है साथ साथ। अब जो पेशेंट है, अब उसका पेन वर्स्ट नहीं रहा, अब उसका पेन जो है 10 आउट ऑफ 10 नहीं रहा, अब उस पेशेंट का पेन जो हो गया है वो अराउंड 6 आ गया है, 4, 5, 6, कि सर अभी उतना पेन तो नहीं होता है, स्टिल लेग में पेन है 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, अगर वो आपको ऐसा बोलता है, तो आप क्या करोगे? नाउ यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग दिस पेशेंट, जिसको आप हाई सिन के ट्रीटमेंट दे रहे थे, अब आप उस पेशेंट को मॉडरेट सिन वाली टेक्निक्स देने लगोगे। Now you will start mobilization of the patient in the moderate sin category. अब उसका पेन कम हो गया है, now you will think कि अब वो moderate sin वाला पेशेंट हो गया है, तो आप उसके किसी भी एक कंपोनेंट को चेंज करना शुरू करोगे धीरे धीरे, या तो आप उसको लेफ्ट से राइट की तरफ प्लेस करोगे, या एक्सटेंशन से फ्लेक्शन की तरफ ले आओगे और लेफ्ट को सिमिलर रखोगे, तो अब उसको मॉडरेट सिन की तरह आप ट्रीट करना शुरू करोगे। तो अब आपने 10 डेज और हो गए, आपके 3-4 फिजियोथेरेपी के सेशंस और निकल गए उस पेशेंट के साथ। नाउ ही इज मच बेटर, उसका पेन बहुत कम हो गया है। नाउ ही सेज कि सर अब मुझे कभी कभी दर्द होता है, वैसे पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं है, और अभी तो मेरे को इस टाइम पे तो पेन नहीं लग रहा है। नाउ दिस स्टेज इज वेयर यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर लो सिन। तो जो वो हाई सिन का पेशेंट था, ग्रेजुअली वो मॉडरेट सिन का पेशेंट बन जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे लो सिन का पेशेंट, लो सिवियरिटी, इरिटेबिलिटी एंड नेचर ऑफ पेन का पेशेंट बन जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं, आपका ट्रीटमेंट जो है स्पेसिफिक टू द पेशेंट रिक्वायरमेंट हो जाता है। So this is the importance of movement diagram. First is you always need not to ask for symptoms. Second is your treatment becomes very specific if you use the movement diagram in your practice. I hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Coming on to this next part of the webinar. आप सारे एक्सरे देख रहे हैं। जब हम बैक पेन को ट्रीट करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बच्चों को स्टार्टिंग में समझ आ जानी चाहिए, बिकॉज एज क्लिनिशियंस बहुत जल्दी, बहुत नेबरहुड में आपको मेरी मदर को बैक पेन था एंड दैट इज व्हाई आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू इट। तो ये बहुत कॉमन डिजीज है और बहुत कॉमन बीमारी है। ये अब एक्सरे देखिए आप, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप एक्सरे देख रहे हैं। देयर इज एन एक्सरे जिसमें एक आदमी के पैर के आर पार हो गई है कील, a nail has crossed the foot. This is an X-ray of an Australian carpenter, और जब वो अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था, he accidentally fired the nail towards his foot, और वो नेल बहुत स्पीड से फायर करती है, वो नेल की जो गन होती है, and that crossed the foot, और he was screaming in pain. वो he was screaming in lot of pain and he was crying. And an ambulance was called for, और उसको hospital लेके गए. When the doctors tried to take the consent for pulling out the nail, he refused because consent बहुत जरूरी होता है, and he fainted. So the doctors decided कि हम इस patient को अब general anesthesia देते हैं और दोनों legs को numb करके anesthesia देके इसके पैर में से ये nail जो है हम निकालते हैं. And when they pulled out the nail और उसके शू को जब रिमूव किया, तब डॉक्टर्स ने देखा कि वो जो नेल है वो उसके पैर में गई ही नहीं थी, वो दोनों उंगलियों के बीच में से निकल गई थी। तो ये जो एक्सरे है, इट वाज अ चेंज इन द पेन साइंसेस अक्रॉस द ग्लोब। दिस एक्सरे प्रोड्यूस्ड अ मेजर चेंज। जो IASP है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन, उसके जो हेड हैं लॉरिमर मोजले, he printed an article on this, और उसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन में एक
चीज जो है, एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ, दैट पेन मे बी बिकॉज ऑफ द परसीव्ड इंजरी, नॉट द एक्चुअल इंजरी। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपको कोई चीज हार्मफुल है तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। परसेप्शन कैन लीड टू पेन। तो अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज करने से मेरा पेन बढ़ जाएगा, जैसे कि मोस्ट पेशेंट आपको आके बोलेंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि एक्सरसाइज करने से तो मेरा पेन बढ़ जाता है। सो दिस इज द बिलीफ सिस्टम। उनको लगता है कि एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ जाएगा, इसीलिए वो बढ़ता है। बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ प्लेसिबो और नोसिबो, इसको भी समझना है। प्लेसिबो क्या होता है? समथिंग परसीव्ड एज पॉजिटिव विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड समथिंग परसीव्ड एज नेगेटिव विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। तो अगर मेरे को लगता है कि एक्सरसाइज करने से मेरा पेन बढ़ जाता है, तो एक्चुअल में चाहे वो हार्मफुल हो या ना हो, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज कर लूंगा तो डेफिनेटली मेरा पेन बढ़ जाएगा। दिस इज नोन एज द नोसिबो इफेक्ट। और ये बहुत बहुत कॉमन है हमारे बैक पेन के पेशेंट्स के साथ। बहुत सारे पेशेंट आपको आके बोलेंगे कि सर मुझे तो आगे झुकने से मना किया हुआ है, अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो डेंजरस होती है, और मेरी स्लिप के ऊपर डॉक्टर ने मना किया कि आपको तो डिस्क प्रोलैप्स हो गई है L4 L5 पे, और अब आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। सो फॉरवर्ड बेंडिंग इज नॉट डेंजरस, लेकिन उसके एसोसिएटेड बिलीफ्स जो कि डॉक्टर्स ने या किसी और फिजियो ने जनरेट कर दी है, जिसकी वजह से पेशेंट को डर बैठ जाता है मूवमेंट का। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम मूवमेंट साइंटिस्ट हैं, वी आर फिजियोज, और दूसरी तरफ हम उनको एक्सरसाइज करने से रोकते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बेड रेस्ट इज एक्चुअली बैड रेस्ट फॉर लो बैक पेन, ये आपने ध्यान रखना है। मोशन इज लोशन। नेगेटिव बिलीफ्स अबाउट पेन जो है वो पेशेंट को बहुत हार्म पहुंचाते हैं। तो ऐसा ही बहुत कुछ होता है सर्वाइकल के पेशेंट्स के साथ भी। बहुत सारे पेशेंट्स उनको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के केसेस में, जहाँ पे बाजू के अंदर दर्द निकल रहा होता है, आर्म के अंदर रेडिएटिंग पेन आ रहा होता है, तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्लिंग्स टेस्ट। एक्सटेंशन और रोटेशन और फिर कंप्रेस करते हैं। दिस टेस्ट इज नोन एज स्पर्लिंग्स टेस्ट। और इस कंप्रेशन टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का पेन अगर आ रहा है उसकी आर्म में, तो देयर इज डेफिनेट न्यूरल इन्वॉल्वमेंट। तो न्यूरल कंप्रेशन जो है, नर्व की कंप्रेशन की वजह से पेन हो रहा है। तो दिस स्पर्लिंग टेस्ट। और जब आप देखिए कि आप उन पेशेंट से बात करते हैं तो उनको डर होता है कि सर मैंने पिल्लो लेना छोड़ दिया है। हेलो आयुषी, काइंडली स्विच ऑफ द माइक। जब आप सुनते हैं उनको तो आप देखते हैं कि पिल्लोज जो है उनको बंद कर देते हैं लेने के। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो पिल्लो लेना छोड़ दो। तो एक्चुअल में आप अगर हम पिल्लो ले रहे हैं तो वी आर पुटिंग द नेक इनटू फ्लेक्शन, जो कि आराम देता है। अब जब आप पिल्लो को निकाल देंगे एंड यू लाई डाउन स्ट्रेट, तो आप पेशेंट के नेक को एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं, जो कि एक पेन प्रोवोकिंग मूवमेंट है। तो रादर देन हेल्पिंग दैट पेशेंट, वो अगर आप पेशेंट को रिमूव करवा देंगे पिल्लो, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी रादर देन डिक्रीजिंग। तो ये जो चीजें हैं, रॉन्ग प्रिकॉशंस कैन लीड टू पेन, ये ध्यान रखना है। और आपने अपने पेशेंट्स को डराना नहीं है। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। चैन से सोना है तो जाग जाओ। You need not to scare your patients. क्या आपको बैक पेन है? दिस इज वन ऑफ द थिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं, कुछ लोग जो हैं उनको बता देते हैं कि ये तो अब सर्जरी से ही ठीक होगा, फिजियोथेरेपी करवा के देख लो। एज फिजियोथेरेपिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पेशेंट को पेन से बाहर निकालना। और बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऑसम हैंड्स ऑन टेक्निक्स हैं, हैंड्स ऑफ टेक्निक्स हैं, जो कि एज फिजियोज आपने यूज करने हैं उस पेशेंट के साथ, और डराना नहीं है पेशेंट को। Because it's your power, it's your belief on the physiotherapy techniques, and when you actually start practicing on the patients, you will have amazing results. So why did the pain become chronic? ये पेन जो है, बैक पेन के पेशेंट ठीक क्यों नहीं होते? क्या रीजन है सर कि ये पेशेंट ठीक ही नहीं होता है? पेशेंट के जो ठीक होने के जो ना रीजन है, उसमें बहुत सारे, एक कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है HCP शॉपिंग। HCP शॉपिंग क्या होती है? मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल शॉपिंग। एक पेशेंट कई सारे डॉक्टर्स के पास जाता है। एक पेशेंट किसी फिजियो के पास गया, फिर ऑस्टियोपैथ के पास, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, फिर न्यूरो सर्जन के पास। किसी ने उसको बोल दिया विटामिन डी की कमी है, किसी ने बोला उसको कैल्शियम नहीं है आपकी बॉडी में, कोई बोल रहा है आपकी न्यूरल कंप्रेशन हो गया है, कोई उसको बता देता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या आपको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है। तो ये जो बहुत सारे ओपिनियंस मिल जाते हैं पेशेंट को, ये डरा देते हैं, एंड दे एक्चुअली स्टार्ट सर्चिंग ऑन द नेट।
वो गूगल के ऊपर सर्च करने लगता है और ब्रेन जो है उनका कॉन्स्टेंटली हाइपर विजिलेंस स्टेट में चला जाता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बहुत सीरियस हो गया है, तभी ये हुआ है। MRI फाइंडिंग्स, नेगेटिव बिलीव्स अबाउट MRI फाइंडिंग्स इज अनदर मेजर कॉज। बहुत सारे पेशेंट आपको बोलेंगे कि सर मेरा तो L4 L5 पे ना डिस्क प्रोलैप्स हो गया है और इसकी वजह से मेरा पेन है। तो आप उनको समझाइए कि जैसे एज के साथ आपके बाल सफेद हो सकते हैं, वैसे ही आपका एज के साथ पेन भी हो सकता है, ये डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन फिनोमिना। अगर आपके 50 इयर्स की एज में बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो आपके डिस्क वैसे के वैसे नहीं रहेंगे। MRI के अंदर आफ्टर द एज ऑफ 30 देयर इज अ रिसर्च जिसमें 30 की एज के बाद आपको डेफिनेटली यू कैन हैव सम सर्टेन डिस्क बल्जेस। तो आपने MRI फाइंडिंग्स को गलत तरीके से उनको ट्रांसलेट नहीं करना है। पेशेंट को आपने बताना है कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, एंड इफ यू टेल द पेशेंट्स दे गेन कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि ये सबके साथ ही है, तो फिर ठीक है। जब आप उनके साथ एग्जांपल्स यूज करते हैं, दे फील कॉन्फिडेंट। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि MRI जो है दैट इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज द फेल्ड एंड द स्केरी ट्रीटमेंट। कुछ पेशेंट्स आपको आकर ऐसा बोलेंगे कि आई हैव नो रिलीफ फ्रॉम द अर्लियर ट्रीटमेंट एंड दैट नीडल सीम्स वेरी स्केरी। कि सर मैंने तो बहुत फिजियोथेरेपी कराई है, बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब तो पेन वैसा ही रहेगा, अब तो ये मेरे साथ ही जाएगा टाइप की जो ये भाषा है वो पेशेंट बोलता है। तो दैट सिग्निफाइज देयर डेस्परेशन, और उनको लगता है कि नहीं इससे तो नहीं होगा ठीक। तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से उनका जो पेन है वो क्रॉनिक हो गया है। The last one is the fear avoidance. I will not do bend again or do running in my life. जब आपके पेशेंट्स आपको आके बोलें कि सर मेरा फॉरवर्ड बेंडिंग से पेन बढ़ जाता है, तो आप समझ जाइए किसी डॉक्टर ने उनको डेफिनेटली मना किया है कि फॉरवर्ड बेंड मत करना। जब आपको पेशेंट बोले, यंग पेशेंट्स, आई हैव सीन पेशेंट्स 24-25 की एज में उनको बता दिया जाता है कि वेट लिफ्टिंग मत करो। When will they lift weight? 70 की एज में। एक यंग पेशेंट जो कि 24 ईयर ओल्ड है, उसके नी में अगर पेन हो गया तो डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया अवॉइड स्टेयर क्लाइंबिंग। व्हेन विल ही क्लाइंब स्टेयर? उसका ऑफिस 3rd फ्लोर पे है। सपोज अगर आपको नहीं किसी और को हार्ट रिलेटेड कोई इशू हो जाए और उसको सांस चढ़े और वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, तो क्या डॉक्टर बोल सकता है कि अवॉइड ब्रीदिंग? नेवर। तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट की तरह सोच रहे हैं और यू एक्चुअली वांट टू हेल्प अ पेशेंट, तो उसकी जो प्रॉब्लम है हमने उसको सॉल्व करना है। यू हैव टू गिव दैट पेशेंट अ न्यू वे टू मूव। तो रादर देन स्केयरिंग or creating a fear around a movement, you always give them a new way how they can do that. So this is important as physios. जब आप practice में आएंगे तो definitely you will have plenty of patients like these. तो ये चीजें आपने समझनी है। मैनुअल थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी के अंदर पेन एजुकेशन का। आप पेशेंट को बताइए। मैक्स जसमन एक रिसर्चर है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मैनुअल थेरेपी, एंड दैट इज सच एन अमेजिंग आर्टिकल। उसमें वो बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैनुअल थेरेपी जो है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। कि जितने भी आप हैंड्स ऑन टेक्निक्स करिए, मैनिपुलेशन करिए, मोबिलाइजेशन करिए, या फिर आप जितने भी कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी टूल्स आप यूज करते आए हैं, उसके साथ साथ पेन एजुकेशन जो है अगर आप इंक्लूड करते हैं अपने ट्रीटमेंट में, जैसे आप उनके पेशेंट के एक्सटिंग्विशिंग फियर जो है एक मेजर कंपोनेंट है, आप पेशेंट के डर को निकालिए एंड गिव देम द कॉन्फिडेंस टू मूव। अगर वो पेशेंट ऐसा कर पा रहा है तो यू हैव बीन सक्सेसफुल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। हमारा जो रोल है अब सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा होने वाला है पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के अंदर, और बहुत सारे लोग जो है वो फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ, हेल्थ की तरफ जाएंगे, और बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व होंगे स्पोर्ट्स के अंदर। और ये जो हमारे लिए ऑब्स्टेकल है that will turn into an opportunity for the physiotherapy profession all around the globe, not only in India but all around the globe, because लोगों का जो अब इंटरेस्ट है वो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के अंदर डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्पेंड टाइम इन एक्सरसाइजेस। तो एज अ फिजियो वी नीड टू गेन स्ट्रेंथ एंड वी नीड टू इंक्रीज द रिसोर्सेज दैट वी हैव। तो उसमें हैंड्स ऑन और हैंड्स ऑफ दोनों ही चीजें आती हैं। तो कमिंग ऑन टू दिस स्लाइड, आप सब इस स्लाइड को पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर।
Can anyone tell me क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे? The brain that changes itself. The brain that changes itself. सारों ने यही पढ़ा होगा मोस्टली. लेकिन आप देखिए ब्रेन के अंदर ए नहीं है, बी आर के बाद ए नहीं है, आपने इसको ब्रेन पढ़ लिया. There was no brain written. ए नहीं है, ए मिसिंग है, लेकिन आपने इसको पढ़ लिया ए. द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ. इट इटसेल्फ सिग्निफाइज कि आपका ब्रेन जो पास्ट हिस्ट्री है बी आर को आई एन के साथ जोड़ लेता है. यही ब्रेन की खासियत है. आपने ब्रेन की फोटोग्राफ देखी और आपने उसको ए की तरह पढ़ लिया. बी आर, देन देयर इज अ फेस, दैट देन देयर इज आई एन. द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ नहीं है वो. बी आर के बाद एक फेस की इमेज है. एंड दैट इज हाउ योर ब्रेन चेंजेस इटसेल्फ. जब आप पेशेंट से बात कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू टॉक टू दैट पेशेंट, जो आपके अप्रोचेस हैं पेशेंट की तरफ, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ ये फोटोग्राफ हमें ये भी बताती है कि हमारा ब्रेन कैसे लिंक करता है. बी आर को आई एन के साथ आपने कैसे लिंक किया. द पास्ट हिस्ट्री अबाउट पेन. सपोज आपके पास एक पेशेंट आया, उसने आपको बोला कि सर 2012 में एक बार मैं गिरा था और मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन हो गया था और अब मेरे को वो दर्द दोबारा से शुरू हुआ है. द लो बैक पेन पेशेंट, द क्रॉनिक लो बैक पेन पेशेंट, उसकी एक खासियत होती है. जब आप पेशेंट से बात करोगे, दे विल टेल यू द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम. जब आप उनसे बात करोगे कि आपका पेन कब से शुरू हुआ, तो बहुत सारे पेशेंट आपको बोलेंगे कि सर ये तो पिछले 7 साल से है. हुआ ये था कि 2013 में मैं अपने फ्रेंड की मैरिज में गया था, तो वहां पे मेरा पैर स्लिप हुआ और उसके बाद से मेरे को ना बैक पेन शुरू हो गया. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. तो उसको, उस पेशेंट को याद है अच्छी तरह से कि उसका पैर स्लिप हुआ था 18 फरवरी 2013 में और उसके बाद से ये बैक पेन शुरू हुआ. उसके बाद सर मैंने फिजियोथेरेपी ली थी और दवाइयां खाई थी, तब तो ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद ना 2-3 साल बाद फिर दोबारा वही पेन हुआ. फिर उसके बाद तो ये रेगुलर हर सर्दियों में होता है और इस साल तो बहुत ज्यादा हो रहा है. तो ऐसी कॉमन स्टोरीज आप लो बैक पेन पेशेंट के मुंह से हर रोज सुनोगे. लेकिन आपको एज अ क्लिनिशियन ये समझना पड़ेगा कि ये जो मूवी उस पेशेंट ने शुरू कर ली है डे 1 पे, द पास्ट हिस्ट्री ऑफ दैट सिवियर पेन, वो उसको आज भी हॉन्ट कर रही है. हर बार उसको नई इंजरी होती है. अब आप सबसे मैं पूछता हूँ कि आपने 19th को रात को क्या खाना खाया था? Can anyone tell me? बहुत रेयरली आपको याद होगा कि डिनर में आपने 19th मई को क्या खाया था. बट उन पेशेंट्स को 7 साल पुरानी वो घटना याद है, वो एपिसोड याद है. तो आप समझिए कि ये जो डिफरेंस है, नो वन, ये जो क्रॉनिक लो बैक पेन पेशेंट्स हैं, हर बार उनको नया पेन होता है, बट दे रिलेट दैट पेन टू द एपिसोड फ्रॉम द बिगिनिंग. उनको लगता है कि ये वही पेन है जो बार बार आ रहा है, जबकि जो ये बिल्कुल गलत है. आप एक बार अगर कोई चोट ठीक हो जाती है, अगर कोई इंजरी ठीक हो जाती है, तो बार बार वो दोबारा से उभर के सामने नहीं आती है. वंस योर वुंड गेट्स हील्ड, तो उसमें दोबारा से पेन नहीं होता है. तो ये आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है इन्हीं एग्जांपल्स को देके. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लास्ट टाइम आपको फीवर कब हुआ था, तो आप बोलेंगे, कुछ में से आपका कोई रिप्लाई होगा कि 3 months ago, 4 months ago. उससे पहले आपको कई बार ये फीवर हुआ है, बट आप ये नहीं बोलते हो कभी भी कि मुझे 25 साल से फीवर हो रहा है या 20 साल से फीवर हो रहा है या 18 साल से फीवर है. हर सर्दियों में कभी ना कभी आपको कोल्ड कफ हो जाता होगा, बट नो वन सेज कि मेरे को 18 साल से कोल्ड एंड कफ है. लेकिन लो बैक पेन पेशेंट्स जो है, अगर उनको 2013 के बाद 2016 में पेन हुआ, तो दे विल लिंक दैट पेन टू द फर्स्ट एपिसोड. तो वो काउंट करना शुरू करते हैं कि मुझे तो पिछले 8 साल से दर्द है. तो ये डिफरेंसेस हैं क्रॉनिक लो बैक पेन पेशेंट्स के. और ये जितने भी नेगेटिव बिलीव्स उस पेशेंट ने जनरेट कर लिए हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप ऐसे ही एग्जांपल यूज करिए, आप उनको समझाइए कि मोशन इज लोशन. आप उनको एक्सरसाइजेस का बेनिफिट बताइए. आप उनको बोलिए कि अगर एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो डिसयूज एट्रोफी में चला जाएगा ये मसल. तो ये जो चीजें हैं, ये आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है. तो हमारे पास 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, 2 तरह के टूल्स होते हैं. फर्स्ट आर द हैंड्स ऑन टेक्निक्स, जिसमें आते हैं MET, MFR, मोबिलाइजेशन,
PRT, पोजिशनल रिलीज टेक्निक, कपिंग, ड्राई नीडलिंग, जो भी आप हाथ से पेशेंट के साथ करते हो, ये सारी हैंड्स ऑन टेक्निक्स में आती हैं। और हैंड्स ऑफ टेक्निक्स के अंदर आते हैं CFT, कॉग्निटिव फंक्शनल थेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों अलग अलग सेशंस हैं, दोनों अलग अलग तरह के टूल बॉक्स हैं, टूल्स हैं जो कि हमारे पास थेरेपिस्ट के पास अवेलेबल होते हैं, और जिससे कि हम पेशेंट को वी कैन ब्रिंग दैट पेशेंट आउट ऑफ पेन। तो आपको आई हैव बीन लकी इनफ कि एक तरफ तो मैं हैंड्स ऑन टेक्निक्स, मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन और मैनुअल थेरेपी, PRT, ड्राई नीडलिंग, कपिंग सीख पाया हूँ सम ऑफ द ग्रेट फिजियोथेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड। एंड ऑन द अदर हैंड जो CFT के फाउंडर है, मैंने टेपिंग सीखी थी जेनी मैकनल से, जो मैकनल टेपिंग की हेड है, और हैंड्स ऑफ टेक्निक पीटर ओसुलिवान इज माय टीचर। तो कंबाइनिंग दीज टेक्निक्स, कंबाइनिंग दीज टूल्स, अगर हम इन दोनों टूल्स को एक साथ यूज करते हैं, वी कैन बेनिफिट अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज फिजियोस, एज यू ग्रो अप इन लाइफ, आप बड़े हो जाओगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस आएंगे, पेशेंट से बात करना सीखोगे, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आएगा आपको, एंड दिस विल चेंज योर परसेप्शन। आप जब पेशेंट से बात करना शुरू करोगे, उनको पाल्पेट करना शुरू करोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ योर हैंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पाल्पेशन is must for becoming a good physiotherapist. If you want to help your patients, start touching your patients. आप underneath उनके tissue tension sense बोलते हैं हम इसे। अगर आप पेशेंट की पाल्पेशन कर रहे हो स्पाइन के ऊपर, you move your fingers, तो आप धीरे धीरे समझना शुरू करते हो कौन से मसल्स जो हैं प्रॉब्लम में है, कौन सी फेशिया प्रॉब्लम में है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, और ये इतना हार्ड वर्क नहीं है, इट्स द रेपिटेशन। ये भी एक्सरसाइज ही है। ABCD आपने पहले दिन अगर लिखनी सीखी थी तो वो एक बार में नहीं आई थी, यू हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन। वैसे ही पाल्पेशन है, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड यू विल बी अ ग्रेट फिजियोथेरेपिस्ट वन डे। सो इन द एंड आई विल ऑलवेज recommend कि think bigger as physios। ये important है आपके लिए। आप आपस में बात करिए, स्टूडेंट में स्टडी ग्रुप्स बनाइए, पाल्पेशन करिए, हैंड्स ऑन टेक्निक्स के बारे में लर्न करिए, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आई एम हैप्पी टू आंसर। आई वर्क विद द BCCI टीम दिल्ली एंड आई एम अ TEDx स्पीकर। आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में सिखाता हूँ, और आई हैव टॉट मोर देन 2000 स्टूडेंट्स टिल डेट। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आई एम हैप्पी टू आंसर वन बाय वन। अगर आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहें रिगार्डिंग द सेम कंसेप्ट, रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन, और जो भी मैंने आपको बताया है, शेयर किया है, जो भी आप पूछना चाहें, कोई भी डाउट हो, डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। Dr. Saurabh, I am Dr. P.K. Sharma, Dean Medical Allied Sciences, Professor P.K. Sharma. I was just watching from the time you have started, and you know that the student will learn better in Hindi. So first and the foremost, the way you taught, the way you teach us, the way you are telling us, I think it is going deeper in our heart. It is not in the brain, it is going into the heart. The way you taught, the way you have given the techniques, how you can go, how you can involve the patient in your therapy. Am I right? So that's a difference. That's a difference. Thank you, sir. Thank you. Skilled person is a skilled person. Yes, you are a skilled person, sir. You are a deserving person that you should be at the different positions. The way you are telling so handily, so coolly, yes, you can do this. Yes, you can do this. Now, just now you are telling for the chronic back pain. How nicely you are telling that I am not aware of 19th dinner, but I am aware of 20 years back, there was a low back pain, and it is due to today also, it is because of that pain only. Right, sir. So from my side, I'll say, Dr. Saurabh, so nice of you. Very, very thank you. Very, very thank you the way you taught. Thank you, sir. All of us, even I am also your student, the way you are telling it. It is concerned with everybody. Thank you. Very, very thank you. Thank you so much. It's open for the audience. Dr. Sajjad, it's nice. Dr. Sakshi Bansal, it's very nice. Dr. Sajjad, I'm thankful to you. Where from you brought such a good intellectual who's telling the practicals, I'm thankful, Dr. Sajjad, Dr. Sakshi, and all team, and Dr. Ritu, right? So now it is open for the students. If they have a question, they must ask it. Thank you, Dr. Sajjad. Thank you, Dr. Saurabh. Thank you so much, sir. Thank you so much for such kind words. Back pain, sir, बहुत ही ज़्यादा common है, और बहुत सारे लोग परेशान होते हैं back pain से ना, और बहुत सारी quackery है हमारे इंडिया में इस back pain से related.
कुछ लोग एक टेक्निक के पीछे स्टूडेंट्स को बताएंगे, या फिर कुछ पेशेंट्स को बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है बैक पेन को लेकर। तो एज अ फिजियो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट्स को खींच के लाए और ठीक करें, और आपके हाथ में और आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए एज फिजियोज कि आप पेशेंट्स को जबरदस्ती उनके पेन से बाहर निकालने का दम रखें। बिकॉज न्यूरल पेन जो 5 साल से 10 साल से किसी पेशेंट को रो रहा है, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। कितना इम्पैक्ट है एक लो बैक पेन पेशेंट के ऊपर। देयर वाज अ लेडी व्हिच केम टू मी 45 इयर्स ऑफ एज। उनका एक बेटा 22 साल का, उसको सीपी था, सेरेब्रल पाल्सी, और जो उनका ओनली अर्निंग मेंबर था फैमिली में वो उसके हस्बैंड थे लेडी के, और ही वेंट थ्रू दिस कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक हो गया उन्हें। तो शी हैड टू टेक केयर ऑफ द एलिंग सन एंड द हस्बैंड, और उनको बैक पेन था। एंड व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू दीज स्टोरीज, जब आप पेशेंट से बात करते हो तो समटाइम्स पेशेंट्स स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये जो चीजें हैं हमें समझनी पड़ेंगी एज फिजियोज। हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट को बहुत आसानी से सुन लेंगे, किसी डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप सर्जरी करवा लो, L4 L5 डिस्केक्टोमी कर देंगे और ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आंसर नहीं है। बिकॉज सर्जरी के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पेशेंट्स के साथ रॉन्ग चलती रहती हैं, और देयर मे बी रिकरेंस ऑफ बैक पेन आफ्टर द सर्जरी। इसके रिसर्चेस हैं। हैंड्स ऑफ टेक्निक्स जो है वो बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। हैंड्स ऑफ टेक्निक जिसमें एक आपका क्वेश्चन है, मैंने अभी देखा, तनिषा, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हैंड्स ऑफ टेक्निक में आपको एक सिंपल हैंड ऑफ टेक्निक बताता हूँ। अगर आप डॉक्टर आपकी पीठ पे हाथ फेर रहा है एंड ही सेज कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, दिस टेक्निक इज नोन एज एंकरिंग इन NLP। इस टेक्निक को हम एंकरिंग बोलते हैं, ANCHORING। आपने फिजिकल स्टिमुलस को वर्बल क्लू के साथ ऐड कर दिया। एक डॉक्टर का पीठ के ऊपर टैप करना और बोलना कि ठीक हो जाएगा, दिस टेक्निक इज नोन एज एंकरिंग इन NLP। हम नॉर्मली यूज करते हैं इससे। देयर आर मेनी वेज, मेनी टूल्स। जब आप नॉर्मल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं पेशेंट से, तो चंकिंग अप क्या है, when you try to pull that patient away from pain, suppose आपके पास पेशेंट आया और वो रो रहा है because of his pain, तो आप कोई ऐसी बात बोलिए, कोई आप उससे ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू करिए जिससे कि आप उसके पेन को दूर ले जाएं, उसके थॉट्स को। तो दैट टेक्निक इज नोन एज चंकिंग अप। दैट इज हाउ यू यूज योर कम्युनिकेशन। और जितने भी डॉक्टर्स आपके एरिया में हैं, हो सकता है कि एक डॉक्टर आपके पास एरिया में हो, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो, और एक डॉक्टर ऐसा हो जो बहुत ही ज्यादा यंग है, लेकिन यंग डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसके पास कोई पेशेंट नहीं जा रहा है। Why is it so? Is because of the power of communication, or how a patient converses, how a physio converses with a patient has an impact on the patient beliefs about the low back pain। ये स्टडी है लिन एट ऑल की 2010 में। Sir, if someone is having burning sensation in palm area during summer time, then how can we treat this and its root cause? There can be problem related to the carpal tunnel syndrome. There can be problem related to the median nerve compression, or neural compressions definitely इसमें involved हो सकते हैं। So it depends upon patient to patient। उसकी assessment जो है, assessment is the key। Your testing should be strong, और जो आपके palpation tools हैं वो अगर strong है तो हम इसको individually check कर सकते हैं patient को। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शायद ऊपर निकल गए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन NPSH, NPC and PNS once again। NPSH में abnormal pain sensations होंगी, burning sensation होगी, stabbing sensation होगी। NPCN में abnormal pain sensation नहीं होगी, compressive neuropathy होगा, pain हो सकता है उसको। Peripheral nerve sensitization मतलब nerve is not compressed at the level of disc, वो periphery में कहीं पे compression हुआ है उसको। Sir, we have one more question in the chat from one of the students. She's asking, can hormonal disbalance cause back pain like in postpartum pain? हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो पोस्टपार्टम पेन में डेफिनेटली देयर इज रिलैक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है, और
ये लिंक्ड होता है कि बिकॉज वहां पे लिगामेंट लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो देयर इज डेफिनेटली एन एक्सरसाइज रिजीम जो कि फॉलो करवाते हैं पेशेंट को। एंटीनेटल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस आपने सुना होगा, तो पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर वो पेशेंट को हम डेफिनेटली एजुकेट करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी कम्स लाइक दिस ओनली। जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, डेफिनेटली जैसे पोस्टपार्टम, इट्स नॉट अ डिसबैलेंस, इट्स नॉट अ डिजीज, एक्चुअल में ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है रिलैक्सिन का रिलीज होना। बिकॉज अगर वो रिलीज नहीं होगा तो देयर विल नॉट बी द वाइडनिंग ऑफ द कैनाल फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। So this is not the disbalance actually that's the normal phenomena of the body. So definitely postpartum pain जो है it is not because of that something wrong has happened. ये phenomena है और normal phenomena है body का, लेकिन there are instances, बहुत सारे instances हैं जिसमें ये देखा गया है कि exercises have produced excellent results। और postpartum की जब हम बात करते हैं तो most of the ladies have a simple single query। जब हम लो बैक पेन की बात करते हैं कि सर मुझे वो इंजेक्शन लगा था डिलीवरी के टाइम पे, वो पेन आज भी होता है। आप बहुत बार सुनोगे बच्चों ये बात कि वो डिलीवरी के टाइम पे इंजेक्शन लगा था और उसकी वजह से आज भी दर्द होता है। तो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, अ स्मॉल नीडल सिंगल प्रिक एक बार अगर वो हुआ है, that cannot lead to pain 20 years after। वो एक अगर माइनर इंजरी हुई भी थी तो ओवर द टाइम इंजरीज हील देमसेल्व्स, नॉट इंक्रीज देमसेल्व्स। वो बढ़ेगा नहीं, वो हर सर्दियों में दर्द होता है, वही टीका वही इंजेक्शन, दैट इज कंप्लीटली मिथ। वो मिथ है, आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हील हो जाता है रादर देन इंक्रीजिंग। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं लो बैक पेन से रिलेटेड। Thanks a lot, sir, for this wonderful session you deliver amongst all. Over to Dr. Priya for vote of thanks. Dr. Priya. Thank you so much, Dr. Taruna. I, on behalf of Physiotherapy Department, Galgotias University, would like to extend a very hearty vote of thanks to Dr. Saurabh Sharma, who blessed us with his immense knowledge and for taking out valuable time from his busy schedule. I would like to extend my special thanks to Dr. Preeti Bajaj, Vice Chancellor, Galgotias University, for her valuable presence. I wish to express my gratitude to Professor Dr. Pramod Kumar Sharma, Dean, SMS. I am grateful to Dr. Rituraj Verma, our PC, Physiotherapy Department, Dr. Sajjad, Dr. Sakshi Bansal, Dr. Taruna, and all our co-faculty members. Without this combined effort, we couldn't have completed the webinar successfully. No webinar can be this successful without the presence of our students. A very big thanks to students of our department for listening and enthusiastically participating in it. I hope you would take a bunch of knowledge enlightened by Dr. Saurabh. So here, without taking much of a time, it's time to conclude the session. We hope to gather around with another amazing session like this in future. Once again, thank you very much all dignitaries and students. Good evening, everyone. Thank you so much, ma'am, for inviting me. Thank you so much, all the faculty, all the respected dignitaries. Thank you so much, students, for listening to me and bearing with me. And sharing the knowledge is the best thing in the world. It is the most sacred thing that we can share. Thank you so much, and a very happy Eid to Sajjad sir and all the students present here. Thank you so much. Thank you once again. Thank you so much, sir. Good evening, sir. Thank you, Saurabh sir. Thank you so much. And now sir will be giving the questions. Everyone has to attempt all the questions which will be given in the quiz form. And those who will secure more than 70% marks will be given certification from sir. Okay. Thank you all. Thank you, sir, once again.